السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت آئی ٹی برآمدات میں 30% اضافہ ہوا۔ اسلام آباد آئی ٹی پارک اگلے سال جون کے بجائے فروری میں مکمل ہوگا۔ $25 ارب برآمدات کا ہدف حاصل کرنے کے لیے آئی ٹی پارک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ آئی ٹی کے حوالے سے تمام اقدامات بر وقت مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی منصوبوں برآمدات میں اضافے اور ڈیجیٹائزیشن کا جائزہ اجلاس۔ اسلام آباد سے ڈیجیٹل اسمارٹ سٹیز پائلٹ پروجیکٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کو اسلام آباد سٹی سپر اپلیکیشن کے ذریعے 150 سروسز تک آسان رسائی ہوگی۔ گزشتہ 5 ماہ میں 3 لاکھ طلباء کے لیے 4 نئے انکیوبیشن سینٹرز کا اجرا۔ حکومتی اقدامات کی بدولت موبائل فونز تیاری میں 30% اضافہ ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ۔ 24 اگست تک آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیئرز پگھلنے سے فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ متعلقہ ادارے ممکنہ صورتحال کے پیش نظر ضروری اقدامات کریں۔ عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے باعث پہاڑی علاقوں کے سفر سے گریز کریں۔ این ڈی ایم میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں کے باعث 6 مکانات منہدم اور 31 کو نقصان پہنچا۔ 31 کلومیٹر سڑکیں شدید متاثر جبکہ 6 پل جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ بارشوں کے باعث فصلوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی مویشی ہلاک ہوئے۔ قلعہ عبداللہ میں ڈرائیور نے کمال مہارت سے سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے خاندان اور گاڑی کو نکال دیا۔ توبہ چکزئی سے آنے والے سیلابی ریلے میں پھنسی گاڑی میں مرد، خاتون اور 3 بچے سوار تھے۔ ایگزیویٹر ڈرائیور نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر فیملی اور ان کی گاڑی کو سیلابی پانی سے نکالا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ڈرائیور کو انعام دینے کا اعلان۔ سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کے باعث شدید نقصان۔ کچے کے علاقوں میں سیلابی پانی میں مسلسل اضافے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ دادو مورو پل سے منسلک علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ سانگھڑ، شکارپور، مٹیاری کے نشیبی علاقوں میں ہزاروں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ بدو، سکھر بیراج اور کوٹری بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب۔ پنجاب حکومت بجلی بلوں پر 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف اپنے بجٹ میں کٹوتی کر کے دے رہی ہے۔ تنقید کی بجائے اس اقدام کو سراہا جانا چاہیے۔ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے دیر پا حل لایا جا رہا ہے۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ مہنگائی 23% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تالر۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ صوبائی حکومت کی توجہ عوامی مسائل پر نہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے تقسیم کی سیاست ختم کر کے عوام کی فلاح کا سوچنا ہوگا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام۔ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں افغانستان بارڈر پر خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 5 خارج ہلاک، 4 زخمی۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان بھی شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے اس عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ جولائی 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پچھلے مالی سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 78% کم رہا۔ برآمدات 11% زیادہ رہیں۔ ترسیلات زر میں 48% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار۔
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाक की हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार बरत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। मंकी पॉक्स की निगरानी का जायजा। मुल्क में सूरत हाल तसल्ली बख्श है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। तमाम एयरपोर्ट्स और इंट्रेस पॉइंट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निजाम मौजूद है। डॉक्टर मुख्तार अहमद। इस्लामाबाद में 5 अरब रुपए की लागत से 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन अस्पताल का संगे बुनियाद। अस्पताल नेशनल पुलिस फाउंडेशन और तुर्की की कंपनी के ताउन से तामीर किया जाएगा। फाउंडेशन के तमाम मंसूबों की आमदन शोहदा और पुलिस की वेलफेयर पर खर्च की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन्ना अस्पताल कराची में नई सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। कराची के 3 बड़े अस्पताल मुल्क के बेहतरीन अस्पताल हैं। सिंध में सेहत की बेहतरीन खिदमात का सिलसिला जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। PIA का कराची से जद्दा और मदीना के लिए किरायों में 30% कमी का ऐलान। एक तरफा किराया 56,000 बशमूल टैक्स कर दिया गया। कराची से जद्दा और मदीना का 2 तरफा किराया 88,000 बशमूल टैक्स होगा। रियायती किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। 30 सितंबर तक सफर किया जा सकेगा। निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 134 जख्मी। खान यूनिस में इसराइली फौज की सहाफियों पर फायरिंग, एक खातून सहाफी जख्मी। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से कबल गजा में जंगबंदी के हक में मुजाहिरा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के ऐलान को ढोंग करार दे दिया। ऐलान का मकसद आलमी बिरादरी को गुमराह करना है। मुतनाज़ मश्क इलाके के अवाम को राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के हक का मुतबादिल नहीं हो सकती। कश्मीरी भारत को अपनी ही सरजमीन पर दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा किया जा सकेगा। रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून शुरू होगा। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर और कराची में होंगे। स्टेडियम्स को आलमी मेयार के मुताबिक जदीद खुदूद पर उस्तवार करेंगे। तामीराती काम वक्त पर मुकम्मल होगा। स्टेडियम्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। और पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। 21 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी पाकिस्तानी टीम का ऐलान। 4 फास्ट बॉलर्स टीम में शामिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि IT की 25 अरब डॉलर बरामदात का हदफ हासिल करने के लिए IT पार्क एक अहम संग मील साबित होगा। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों, IT बरामदात में इजाफे और डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि IT पार्क के मंसूबे पर अब तक पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। वज़ीर आज़म ने IT के शोबे के हवाले से तमाम इक़दामात को मुय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की।
वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत गुज़िश्ता बरस की निस्बत IT बरामदात में 30% इजाफा हुआ है। कोरियन कंपनी ने IT पार्क की तकमील की मुद्दत को अगले साल जून से कम करके फरवरी कर दिया है। इस्लामाबाद IT पार्क पर 24 घंटे काम जारी है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद से डिजिटल स्मार्ट सिटीज़ के पायलट प्रोजेक्ट का इजरा किया जा रहा है। शहरियों को इस्लामाबाद सिटी सुपर एप्लीकेशन के जरिए 150 सर्विसेज की आसान रसाई होगी। इजलास को आगाह किया गया कि IT शोबे में 7 करोड़ 70 लाख डॉलर की हुकूमती सरमायाकारी से IT बरामदात में 2.5 अरब डॉलर का इजाफा मुतवक्के है। इजलास को आगाह किया गया कि गुज़िश्ता 5 माह में 4 नए इंक्यूबेशन सेंटर्स का इजरा किया गया है। मुल्क में हुकूमत के इक़दामात की बदौलत मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी में 30% इजाफा हुआ है। इजलास को IT के शोबे के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी और इनसे IT बरामदात में मरहलावार इजाफे पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुल्की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से 10 अरब डॉलर, टेलीकॉम शोबे से 2 अरब, जबकि हुकूमती इक़दामात से IT बरामदात में 13 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुतवक्के है। इजलास को बताया गया कि मुल्क भर में मालियात, सेहत, ज़राअत, तालीम, इंतज़ामी और सिक्योरिटी की खिदमात मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शहरियों तक रसाई के लिए मनसूबा हतमी मराहिल में है। और नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल के लिए अब आपके लिए चलते हैं साथी एंकर अब्दुल कदीर की जानिब। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर्स पिघलने से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। तफसील के लिए शाहीन अख्तर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई से बारिशों का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, हम आए हैं महकमे मौसमियात के ऑफिस। DG महकमे मौसमियात से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। आज तक जो है तकरीबन 39% मानसून जो है वो तकरीबन ज़्यादा जा रही है। आगे भी एक हफ़्ता पूरा जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारे पंजाब से लेके बलूचिस्तान तक, बल्कि सिंध तक भी बारिशों का इम्कान है। चावल की काश्त के लिए या चावल की फसल के लिए ये पानी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। गन्ना जो है हमारे सेंट्रल पंजाब से लेके जनूबी पंजाब या वहाँ तक होता है, वो उसके लिए भी है। लेकिन कपास की फसल या दूसरी वो हमारे जो सब्ज़ियाँ हैं या ये है, उनके लिए ये ख़तरनाक है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई PDMA का अमला और ज़िली इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान औस्ता मोहम्मद में 31 मिलीमीटर, बारखान 11, लसबेला 8, उरमाड़ा 6, पंजगूर गवादर खुजदार 5, कोयटा 3, जबकि पशिन और सिब्बी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट बलूचिस्तान से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक मूसलाधार बारिशों के बाइस 2919 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 16 अफराद हादसाती तौर पर जांबाक होने समेत 11 अफराद जख्मी भी हुए। सैलाबी रेलों के बाइस 6 घर मुकम्मल मुनहदम और 31 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक 31 किलोमीटर सड़कें मुतासिर और तूफानी बारिशों से 6 पुल जुज़वी तौर पर तबाह हुए। मानसून बारिशों से 97 एकड़ पर फसलों को नुकसान होने समेत 120 मवेशी भी हलाक हुए। गवर्नमेंट ने अपने 37 अजला में पहले से फूड और नॉन फूड आइटम्स भिजवाए हुए हैं। जहां जहां पर हमें पता था कि चौक पॉइंट्स है, वहां पर मशीनरी खड़ी कर दी गई थी। मानसून के दौरान आप लोग गैर जरूरी सफर से, पिकनिकों से, डैम्स के ऊपर जाने से गुरेज करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मूसाखेल, बारखान शिरानी, कच्छी हरनाई, ज़ियारत कल्लाद, सुराब और खुजदार समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में मूसलाधार तेज बारिशों के इम्कानात हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा।
بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں ایکسکیویٹر ڈرائیور نے کمال مہارت سے سیلابی پانی میں پھنسی ہوئی گاڑی کو نکال لیا۔ قلعہ عبداللہ میں توبہ اچکزئی سے آنے والے سیلابی ریلے میں ایک گاڑی پھنس گئی جس میں ایک مرد، خاتون اور 3 بچے سوار تھے۔ علاقہ مکینوں نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایکسکیویٹر ڈرائیور کو بلایا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر فیملی اور ان کی گاڑی کو سیلابی پانی سے نکالا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایکسکیویٹر ڈرائیور کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا۔ ناظرین، سندھ کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کے باعث شدید نقصان ہوا ہے۔ کچے کے علاقے میں سیلابی پانی میں مسلسل اضافے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ سانگڑ، شکارپور اور مٹیاری میں ہزاروں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شیراز علی ڈاہری کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کے دوسرے اسپیل سے سکھر اور نوشہر و فیروز میں شدید نقصان ہوا ہے۔ گزشتہ 2 روز میں تیز بارش کی وجہ سے ضلع نوشہر و فیروز میں کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ کئی کچے مکانات بھی گرے ہیں۔ نوشہر و فیروز کے کچے کے علاقوں میں سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ دادو مورو پل سے منسلک دریائے سندھ کے کچے کے علاقوں سے لوگ مختلف مقامات پر نقل مکانی کر رہے ہیں، جبکہ دادو کینال کو گاؤں بھائی خان لاشاری کے قریب شگاف لگنے کی وجہ سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ سکھر شہر اور قریبی علاقوں میں مسلسل 24 گھنٹے بارش ہوئی جو کہ 297 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے نکاسی آب کا عمل جاری ہے، تاہم نشیبی علاقوں میں پانی اب بھی موجود ہے۔ حالیہ بارشوں سے ضلع سانگڑ، شکارپور اور مٹیاری کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے اور ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی گئی فصلوں جس میں کپاس، تل، کھجور اور سبزیاں شامل ہیں ان کو نقصان ہوا ہے۔ دادو میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی ہے جبکہ مسلسل بارشوں سے گڈو بیراج، سکھر بیراج اور کوٹڑی بیراج کے مقام پر پانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ سندھ کے بعد رخ کریں گے صوبائی دارالحکومت لاہور کا، جہاں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ 1 گھنٹے سے زائد ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات وسیم سجاد کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی جس سے شہر کے درجہ حرارت اور حبس میں نمایاں کمی ہوئی۔ 1 گھنٹے سے زائد ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں اور اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا، تاہم واسا اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیموں نے نکاسی آب کو یقینی بنایا۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 جبکہ کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون بارشوں کا یہ اسپیل 20 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی موجودہ صورتحال کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے نارتھ ایسٹ افغانستان پر موجود ہے، جس کی وجہ سے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر کے بیشتر اضلاع میں آنے سے اونچے درجے کی بارشوں کے امکانات ہیں۔ صوبائی وزیر و چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق نے پی ڈی ایم میں لاہور آفس کا دورہ کیا اور موجودہ موسمی صورتحال کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ پی ڈی ایم کے مطابق مانسون بارشوں کے پیش نظر پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات ہیں۔ پنجاب بھر کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم نے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں اور کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ 24 گھنٹے جاری ہے۔ وابڈا حکام کے مطابق تربیلا ڈیم پانی سے مکمل بھر گیا ہے۔ ڈیم میں پانی کی سطح 1550 فٹ ہے جبکہ تربیلا جھیل میں اس وقت 57,66,000 ایکڑ فٹ قابل استعمال پانی موجود ہے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے نوکنڈی کی بات کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دال بندین میں 40، ملتان اور سرگودا میں 35 جبکہ جموں میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور اور کراچی 34، پشاور 37 جبکہ کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ موسم کی صورتحال سے آگاہ کرے تھے۔ ناظرین، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیراعظم نے چین میں پاکستانی طلباء اور ریسرچ اسکالرز کی زراعت کے شعبے میں تربیت کے حوالے سے تمام صوبوں کو یکساں تناسب دینے کی ہدایت کی۔ اس ضمن میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ چین میں زرعی تربیت کے حوالے سے پاکستانی طلباء اور ریسرچ اسکالرز کا شفاف طریقے سے انتخاب کرے گی۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि बहरी रास्ते से अंदरून मुल्क के लिए पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म को चीनी माहिरीन के वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी माहिरीन के वफ़द ने रवां बरस 30 जुलाई तक 6 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा किया और मुख्तलिफ वजारतों की नुमाइंदगान से मुलाकात की, जिसमें वजारतों ने मुतल्लिका शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ दी। वफ़द के दौरे के दौरान चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन और सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी वफ़द ने मुल्क के बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से मुलाकातें की। मुल्क की बरामदात बढ़ाने और नॉन ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के हवाले से चीनी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। चीन में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के हवाले से चीन के मुख्तलिफ शहरों में सेक्टोरियल रोड शोज़ मुनक्किद करवाए जाएंगे। इजलास को ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रो मेडिकल डिवाइसेस और दीगर शोबों में चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और अपग्रेडेशन के हवाले से खिदमात हासिल की जाएंगी। चीनी सनतों की पाकिस्तान में रिलोकेशन के हवाले से चीनी कंपनीज की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। चीनी ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी ने हाल ही में पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाने के हवाले से अहम पेशरफ्त की है। इस हवाले से खुसूसी इक्तसादी जोन्स के लिए ज़मीन को लीज पर देने के हवाले से आसानी पैदा की जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तानी तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स को चीन में ज़राअत के शोबे में तरबियत दी जाएगी, जिसके लिए अब तक 572 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारज कहते हैं कि आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत मुल्क भर में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत अपने बजट पर कटौती करके बिजली सार्फिन को 2 माह के बिल्स पर 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दे रही है। इस इकदाम पर तनकीद दुरुस्त नहीं, सियासी जमातों को पंजाब के मॉडल की पैरवी करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जिस दिन से ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई है, इसका एक ही मकसद था कि बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई में कमी वाक़ई की जाए। 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट में से काटा और बिजली के बिलों की मद में 3 महीनों के लिए 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया और हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि वो हुकूमत पंजाब के फंड में से 45 अरब रुपया जो है वो निकालेंगे और उस 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। तो ये रिलीफ देना जो है ये सूबे का एक अपना मामला था और सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है वफाक के पिछले कदम को आगे सपोर्ट करते हुए। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें अवामी फलाह के मनसूबों पर काम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल पर नहीं बल्कि सियासत और करप्शन पर है। बहुत अफसोस की बात है कि अभी लड़ाई किस पर है कि मुझे जो रिश्वत और ये बत्ती लिए जा रहा है, कोई कहता है मेरा इतना परसेंटेज बनता है और मेरा इतना शेयर बनता है। एक वज़ीर कहता है कि मेरी वजारत में सारे मेरे बनता है, चीफ मिनिस्टर कहता है कि नहीं मैं चीफ एग्जीक्यूटिव सारा मेरा बनता है। उनके नीचे MPAs की भी वही वो तीर आ रहा है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र आर्डर सब कुछ में। तो अभी ये एक बाज़ार वही गर्म है, वो लगी हुई है। बहुत अफसोस की बात कि आज तक उस सूबे के मसाइल पर न कोई बात हुई और न आगे बढ़े, न उनके लिए फ़ाइट की, न आपस में उनके जितने रिसोर्सेज है उसके लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसको सबक सीख लेना चाहिए। बकाया 3 सूबों वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरिक बैंक के सदर अहमद अब्दुल आल ने वर्चुअल मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान में मौशी नुक्ता नज़र और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के मालियाती मंजरनामे में मशरिक बैंक की दिलचस्पी को सराहा और बैंक के साथ दोबारा मुंसलिक होने के लिए हुकूमत की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने की हुकूमती आज़म का अदा करते हुए यकीन दिलाया कि सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं।
मशरिक बैंक के सदर ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और SMEs के हवाले से भी तबादला ख्याल किया ताकि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तरसीलात ज़र, तिजारत, मालियात और इस्लामी बैंकारी के लिए ताउन को बढ़ाया जा सके। बहरी उमूर के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा है कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बरामदात में इजाफे के अलावा बंदरगाहों को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। वो कराची में बहरी उमूर और ब्लू इकॉनमी से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील शेयर कर रही हैं नौरीन आसिफ। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि KPT और पोर्ट कासिम में भरपूर सलाहियत मौजूद है, जिससे इस्तेफादा करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इकदाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बंदरगाहों की गहराई बढ़ाने के लिए ड्रेजिंग की सहूलत हमारे पास हो। We are now trying to have our own dredging instead of spending foreign exchange to some and giving facilities, long-term facilities to other. I think we can get benefit in Pakistan. We can have more revenues. Presently, if PNSC buys new container vessels, it will take time, and then the huge cost is there. Instead of that, we can have some feeder vessels that can transport, that PNSC can transport from KPT to Gwadar also and to Port Qasim also. कॉन्फ्रेंस में ताजे बरादरी समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है जिसके पास बंदरगाहें हैं। इस शोबे को मजीद तरक्की देकर हम मुल्क की मैशत में बेहतरी ला सकते हैं। बाद में वफाकी वजीर कैसर शेख ने मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए कहा, हुकूमत छोटे बड़े ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम बंदरगाहें फाल हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। माली साल 2023 और 24 में करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी हुई है। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2023 के मुकाबले में जुलाई 2024 का खसारा 78% कम रहा। तफसील बता रहे हैं मियां मोहम्मद समी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2024 में पाकिस्तान के करंट अकाउंट में 16 करोड़ 20 लाख डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले माली साल के इसी महीने में 74 करोड़ 10 लाख डॉलर के खसारे के मुकाबले में 78% कम है। जुलाई 2024 में मुल्क की अशिया और खिदमात की मजमूई बरामदात 3.013 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल के इसी महीने के 2.706 अरब डॉलर के मुकाबले में 11% ज्यादा है। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2024 के दौरान दरामदात 5.6 अरब डॉलर रही, जो सालाना बुनियादों पर 12% से ज्यादा इजाफा है। कारकुनों की तरसीलात ज़र 2.995 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 48% ज्यादा हैं। बरामदात में इजाफे, बुलंद शरह सूद और दरामदात पर कुछ पाबंदियों ने पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे को कम करने में मदद की है। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माहाना बुनियादों पर जुलाई 2024 में पाकिस्तान के करंट अकाउंट में 48% कमी हुई है। जून 2024 में ये खसारा 31 करोड़ 30 लाख डॉलर था। पाकिस्तान की अशिया और खिदमात की बरामदात में जून 2024 के 3.081 अरब डॉलर के मुकाबले में 2% कमी आई है और दरामदात में जून 2024 के 5.675 अरब डॉलर के मुकाबले में 1.3% कमी आई है। पाकिस्तान के लिए करंट अकाउंट अहम है, जो अपनी मैशत को चलाने के लिए दरामदात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। बढ़ता हुआ खसारा शरह मुबादला पर दबाव डालता है और ज़र मुबादला के ज़खायर को कम कर देता है। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सोलर पैनल्स की मकामी सतह पर तैयारी के सिलसिले में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशें रंग ले आई। इस सिलसिले में चीनी कंपनी और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत चीनी कंपनी पंजाब में सोलर पैनल्स बनाने वाली फैक्ट्री लगाएगी। पंजाब के सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और चीनी कंपनी AIKO के साउथ पैसिफिक रीजन के सदर एलेक्स हेंग ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर शाफे हुसैन ने कहा कि सनतों और घरों को महंगी बिजली से बचाने का वाहिद हल शमसी तवानाई का फरोग है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत 7000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर चलाने और कम आमदनी वाले अफराद को मुफ्त या आसान इकसात पर सोलर पैनल्स फराहम करने का मंसूबा बना रही है। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मौजूदा हालात में संजीदगी से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर अमल पैरा होना होगा। लाहौर में फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अवैस खटाना।
کانفرنس سے خطاب کے دوران وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے حکومتوں کے ساتھ پالیسیوں میں استحکام اور تسلسل بہت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں جس سے روایتی زراعت متاثر ہوئی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خوراک کی پیداوار میں اضافہ بھی ضروری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی نے اس پلانٹ کے اوپر جو زراعت کی پیداوار کے روایتی ذرائع ہیں ان سب کے لیے بے حد خطرات پیدا کر دی ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ اس وقت ملک معاشی بحران کا شکار ہے، مستقبل میں بہتری کے لیے قرضوں پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں سنجیدگی سے مستقبل کی منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ملک ایک غیر معمولی معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور سنجیدہ چیلنجز کا سامنا غیر سنجیدہ رویوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہم سب کو سوچنا ہے کہ کس طریقے سے ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ یہاں پہ جس طریقے سے ریسرچ پیپر پڑھے جا رہے ہیں، جس طریقے سے جو ہے اس کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے، جتنی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی جو ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے it is need of the hour. I'm very pleased to be here today in Lahore for this conference on food security organized by the National Institute of Public Policy. They come here, they discuss different aspects of food security and they give their valuable input which would be used, to formulate robust policies. اس موقع پر دیگر مقررین نے خوراک کی پیداوار میں اضافے اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ محمد ویس کھٹانا، PTV نیوز، لاہور۔ صحت کے بارے میں وزیراعظم کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر مختار احمد بھرت نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور ایم پاکس کی نگرانی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں بارڈر ہیلتھ سروسز کے عملے کی جانب سے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ تمام ایئرپورٹس اور ان کے انٹری پوائنٹس پر اسکریننگ کا مؤثر نظام موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایم پاکس کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ اسلام آباد کے پیمز ہاسپٹل میں اس حوالے سے آئسولیشن وارڈ مختص کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں 5 ارب روپے کی لاگت سے 100 بستروں پر مشتمل جدید ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ ہسپتال نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اور ترکیہ کی نجی کمپنی کے تعاون سے تعمیر کیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ فاؤنڈیشن کے تمام منصوبوں کی آمدنی شہداء اور پولیس کی ویلفیئر پر خرچ کی جا رہی ہے۔ شہداء اور پولیس کے جوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے صوبوں میں بھی کام جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جناح ہسپتال کراچی میں مختلف جدید سہولیات کی فراہمی کا افتتاح کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں پاکستان کے 150 سے زائد شہروں سے آنے والے افراد کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں نواب علی شاہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جناح ہسپتال محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کا آئینہ دار ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1993 میں کہا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ملک میں اداروں کو چلائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں سائبر نائف کے ذریعے کینسر کا مفت علاج نہیں کیا جاتا، تاہم جناح ہسپتال میں یہ سہولت مفت میسر ہے اور آج ہم سائبر نائف کے 3رے یونٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ مہنگا ترین علاج ہو۔ سائبر نائف مشین کا ایک ٹریٹمنٹ $100,000 ایک ٹریٹمنٹ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے 3را سائبر نائف مشین آج انٹروڈیوس کروایا ہے ہمارا شہر کراچی میں JPM سیب میں، جو کہ مفت علاج پاکستان کی شہریوں کے لیے اس سائبر نائف ٹیکنالوجی کے تھرو کرواتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ جناح ہسپتال میں ہر سال 100 بستروں کا اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ پرانی سائبر مشین پر ایک مریض کا 80 منٹ میں ٹریٹمنٹ ہوتا تھا۔ اب نئی مشین پر 20 منٹ میں ایک مریض کا علاج ممکن ہو سکے گا اور اس طرح 4 گنا زیادہ مریضوں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو نے کہا کہ سندھ کے دیہی علاقوں میں ذہنی مریضوں کے علاج کے لیے ٹیلی میڈیسن پر جلد کام شروع کیا جا رہا ہے۔ تقریب سے دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس سے پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جناح ہسپتال میں 120 بستروں پر مشتمل ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنس، 100 بستروں پر مشتمل ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی اینڈ اسٹروک یونٹ، جبکہ کینسر کے جدید طریقہ علاج سائبر نائف کا بھی افتتاح کیا۔ PTV نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ۔ آپ سے ملاقات اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔
सोचते हैं अवाम कब होंगे दूर मुश्किल हालात। हम मानते हैं कि हाँ मुश्किल है माशी हालात, मगर हम न छोड़ेंगे अवाम का किसी सूरत साथ। वजीर आला पंजाब है लाई बिजली के भारी बिलों में वाज़ेह कमी। माहाना 201 से 500 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब और इस्लामाबाद के लाखों खानदानों के अगस्त और सितंबर के बिलों में से 14 रुपए फी यूनिट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज। मुस्कुराएगी फिर से अवाम, खुशहाली मंजिल का निशान। हुकूमत पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया है और वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की लेकिन उसे रोक दिया गया। अदालत ने इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई हतमी नहीं हुई। हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 के इख्तियार समाअत से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसलों में उसूल तय है कि हाई कोर्ट अस खुद नोटिस नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि 29 मई 2024 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को अगली अदालती कार्रवाई में तौसीह नहीं दी गई, इसलिए इसे मुअत्तल नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म के कानून और इंसाफ के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि PTI सियासत नहीं कर रही बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से मिलकर अफवाज पाकिस्तान और सिपा सरार से मुतल्लिक जहरीली मुहिम चलाई। मुशीर कानून और इंसाफ ने कहा कि न्याजी फैज़ गठजोड़ सब पर अयां हो चुका है, PTI से कोई बातचीत नहीं होगी। मैं करण थापर की इसलिए मिसाल आपको दे रहा हूँ कि उन्हीं के साथ इनके मैसेजेस थे, जो मैसेजेस आपने भी देखे, आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे, पाकिस्तानी कौम और अवाम की नज़र से भी गुजरे होंगे। तो फिर इसके बाद ये कोई शाइबा नहीं रह जाता कि हम जो है इसमें इनको कहें कि ये सहाफ़ी हैं या कोई ये सियासी जमात हैं। सियासी जमातें तो ये नहीं करती। हाँ, अगर आपने इंटरव्यू करना है, क्योंकि ये बात तो इंटरव्यू से शुरू हुई, आपने भी देखा कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब का गालिबन इंटरव्यू की बात हो रही थी, उसके बाद अपने ओपिनियंस भी उन्होंने देना शुरू कर दिया अपना। ही सो मच सो कि उन्होंने अपना ही स्पोक हिज माइंड अफवाज पाकिस्तान के बारे में, अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार के बारे में, जिस तरह की एक जहरीली कैंपेन और एक जहरीली मवाद जो उनका अपना ओपिनियन था वो उन्होंने ओपाइन किया और बताया। दुश्मन मुल्क के सहाफ़ी के साथ वो अपनी थॉट्स शेयर की और बताया कि किस तरह जो है हम इसके साथ एग्री नहीं करते। ये तमाम तर सिलसिला शुरू होता है नवंबर 2022 से। ज़िला बाजोड़ में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से फितना खारिज के गिरोह ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक फौज के मुस्तैद जवानों ने नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक फितना खारिज के दरअंदाजी करने वाले गिरोह को घेरे में ले लिया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जबकि 4 खारजी दहशतगर्द शदीद जख्मी हो गए। ऑपरेशन में मादरे वतन का दिफा करते हुए 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में ज़िला मानसहरा के रिहायशी 35 साला लांस नाइक उमर हयात, ज़िला खैबर के रिहायशी 36 साला नाइक अनायत खान और ज़िला पेशावर के 25 साला सिपाही वकार खान शामिल हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफ़गान उबूरी हुकूमत से ये मुतालबा करता आ रहा है कि अफ़गान उबूरी हुकूमत अपनी तरफ सरहदी इंतज़ाम को मौसर बनाए ताकि फितनतुल ख़वारिज की तरफ से दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोका जा सके। यह अफ़गान उबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसने अक़वाम आलम से यह वादा किया था कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान समेत किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म है और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे इस आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं।
बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। आलमी बिरादरी की जानिब से फ़लस्तीन में जंग बंदी की जारी कोशिशों के बावजूद गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के मजालिम का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा पर इसराइली बमबारी में 40 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 134 ज़ख्मी हो गए। शिमाली गजा में इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए, जबकि खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के हमलों में 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में एक रिहायशी इमारत पर सेहूनी फ़ज़ाई हमले में 4 फ़लस्तीनी और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सहाफ़ियों के ग्रुप पर इसराइली फ़ौज के हमले में एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद और ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने कहा है कि गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक उसके 27 कारकुन हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,139 हो गई, जबकि 92,743 ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान और मुतादिद तंसीबात को निशाना बनाया। जनूबी लबनान के कस्बे हौला पर इसराइली हमले में 2 अफराद जाँ बहक हुए। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर जवाबी हमला करते हुए शिमाली इसराइल में एक फ़ौजी अड्डे और इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। उधर अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तेबून ने कहा है कि उनका मुल्क आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबे से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगा। उनका कहना था कि रफ़ा सरहदी चौकी खुलने की सूरत में हम गजा में 20 दिन के अंदर अंदर 3 अस्पताल तामीर करने के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी शहर शिकागो और नीदरलैंड्स में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। मुज़ाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर गजा में जंग बंदी के हक़ में मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर गजा में नस्ल कुशी ख़त्म करो और हम गजा की हिमायत करते जैसे नारे दर्ज थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरी अवाम मकबूजा इलाके में कश्मीर दुश्मन इक़दामात और गैर कश्मीरियों को ज़मीन अलॉट करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में भारतीय इलेक्शन कमीशन की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने के ऐलान को महज एक ढोंग करार दिया, जिसका मकसद आलमी बिरादरी को गुमराह करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तरह की मश्क मुतनाज़ा इलाके के अवाम को राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के हक़ का मुतबादिल नहीं हो सकती। उन्होंने खबरदार किया कि कश्मीरी भारत को अपनी ही सरजमीन पर उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हुर्रियत तर्जुमान ने कश्मीरी अवाम पर जोर दिया कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक को फ़रोग़ दें ताकि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की इन मज़मूम साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए काले कवानीन के इस्तेमाल, जायदादों पर कब्जे, गिरफ्तारियों, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। पार्टी ने झूठे इल्ज़ामात के तहत जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के कारकुनों की मुसलसल गैर कानूनी नज़रबंदी की मज़म्मत की है। जिला पूंछ के इलाके सरनकोट में मोहम्मद आसिफ नामी एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के अहल खाना ने उसके पुरस्रार कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लवाहिकीन ने कत्ल के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने वाक़े की मुकम्मल आज़िदाना तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। नाज़रीन, भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के बाद मुल्क भर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कलकत्ता से शुरू होने वाले एहतजाज ने भारत भर को अपनी लपेट में ले लिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ हफ्ते के रोज होने वाले एहतजाज में 10 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स शामिल हुए। हड़ताल की वजह से अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मफलूज हैं। भारत में खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में पुलिस ने खवातीन की अस्पताली के 31,516 मुकदमा दर्ज किए, जो कि 2021 के मुकाबले में 20% ज़्यादा हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद मोदी सरकार शदीद बुखलाहट का शिकार है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश में भारतीय कठपुतली की हैसियत से काम कर रही थीं। भारत अब भी बांग्लादेश में मुदाखलत कर रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और तलबा तहरीक के सरबराहान ने बीजेपी को बांग्लादेश में मुदाखलत न करने की वार्निंग जारी की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अहदेदारान का कहना है कि भारत बांग्लादेश में अमन और अमान की खराब सूरत हाल को मजीद खराब करना चाहता है और रोचे हथकंडों से खित्ते का अमन तबाह करने के दर पर है। बिगड़ती हुई अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ईरान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अफगान ईरान सरहद पर बाड़ लगाने का फैसला स्मगलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए किया गया है। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना था कि सरहद पर बाड़ लगाने का काम ईरानी हुकाम अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कर रहे हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक 50 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर ईरान में मुकीम हैं। तालिबान की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ और मज़ालिम से तंग अफगान लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए। हिजरत करने वाले अफगान बाशिंदों की अक्सरियत गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग और दहशत गर्दी में मुलव्वस है।
افغانستان میں طالبان نے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں کی ہیں۔ طالبان نے تمام جیلوں سے سزا یافتہ دہشت گردوں کو رہا کیا، جبکہ سابق حکومت کے اہلکاروں کو پابند سلاسل کیا۔ انتقامی کارروائیوں کے طور پر طالبان نے 100 سے زائد سابق افغان اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جبکہ متعدد آج بھی طالبان کی جیلوں میں قید ہیں۔ 2021 میں طالبان نے طلاق کے تمام احکامات کو منسوخ کر کے خواتین سے طلاق اور خلا کے حقوق بھی چھین لیے۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق طالبان نے متعدد خواتین کو جیلوں میں دوران حراست تشدد اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل بھی کیا۔ پی آئی اے نے کراچی سے جدہ اور مدینہ کے لیے کرایوں میں 30% کمی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق کراچی سے جدہ اور مدینہ کے لیے یک طرفہ کرایہ 56,000 بشمول ٹیکس، جبکہ دو طرفہ کرایہ 88,000 بشمول ٹیکس کر دیا گیا ہے۔ رعایتی کرایوں کے ٹکٹ 31 اگست تک جاری کیے جائیں گے، جبکہ 30 ستمبر تک ان ٹکٹس پر سفر کیا جا سکے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سپر بلو مون کا نظارہ کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج رات 11:26 پر سپر بلو مون دیکھا جا سکے گا۔ سپر بلو مون دو الگ الگ ظاہر ہونے والے فلکیاتی مظاہرے کا امتزاج ہے۔ زمین کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے سپر مون رونما ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ سپر بلو مون 2 سے 3 سال کے عرصے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم سے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ شہری علاقوں میں ماحولیاتی اقدامات اور دیہی علاقوں میں متبادل توانائی کے ذرائع متعارف کرانے کے لیے وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی کے سدباب UNDP کے تعاون سے مونٹریال پروٹوکول پروجیکٹ کو ملک بھر میں شروع کر رہے ہیں۔ MQM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی طرح کراچی کے عوام کو بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماڑی کنویں کی گیس کراچی الیکٹرک کو دی جائے تو بجلی کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ MQM پاکستان ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے۔ امین الحق نے کہا کہ MQM پاکستان جلد سکھر کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان حکومت صحت کے شعبے کی بہتری اور ڈاکٹرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ گلگت میں ینگ ڈاکٹرز گرینڈ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے گلبر خان نے کہا کہ صوبائی حکومت نے ہیلتھ انڈورمنٹ فنڈ 50 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب روپے کر دیا ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں 2 سال تک کانٹریکٹ پر خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کو مستقل کرنے کا اعلان بھی کیا۔ سینٹ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مجلس قائمہ نے وزارت کے اداروں کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے ان کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے پر زور دیا ہے۔ مجلس قائمہ کا اجلاس چیئرمین سینیٹر کامل علی آغا کی صدارت میں ہوا۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے حکام نے بتایا کہ انسٹی ٹیوٹ میں الیکٹرک گاڑی تیار کی گئی ہے۔ مجلس قائمہ کو کینبس کنٹرول ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام، رولز اینڈ ریگولیشنز اور لائسنس کے اجرا کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اختیارات کی بنیادی سطح تک منتقلی کے بارے میں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی کا اجلاس سرکا سہروردی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں صنعت و پیداوار اور توانائی کی وزارتوں کے صوبوں کو منتقلی کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی۔ ان وزارتوں کی ذمہ داریاں صوبوں کو منتقل کرنے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کو سفارشات بھجوائی جائیں گی۔ کمیٹی نے 10 بڑی کھاد فیکٹریوں کی پیداوار، فروخت اور برآمدات کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد میں انڈونیشیا کے سفارت خانے کے زیر اہتمام 3 روزہ انڈونیشین ایکسپو 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ انڈونیشیا کی یوم آزادی کے موقع پر ہونے والی اس نمائش کا مقصد کاروبار اور عوامی رابطوں کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے روایتی اور ثقافتی شوز پیش کیے گئے۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے نمائش دیکھی اور انڈونیشیا کی ثقافت میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔